ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے فیصلے کے تسلسل میں وزیر اعظم نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ حکومت نے ہائی آکٹین پر لیوی بڑھا کر 300 روپے فی لیٹر کر دی۔ ہائی آکٹین کی فی لیٹر قیمت 534 روپے ہو گئی۔ سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر پابندی عائد۔ کسی محکمے میں ہائی آکٹین کا استعمال ناگزیر ہو تو متعلقہ آفیسر کو ذاتی خرچ سے ایندھن ڈلوانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ تمام وفاقی محکمے، اتھارٹیز اور ذیلی ادارے فیصلے پر فوری اور مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اس سے قبل سرکاری گاڑیوں کے ایندھن پر 50% کٹوتی اور 60% گاڑیوں کو گراؤنڈ کیا جا چکا۔ ان اقدامات سے حاصل بچت عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور سستا تیل مہیا کرنے پر خرچ کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کفایت شعاری پالیسی پر سختی سے عمل کرتے ہوئے غیر ضروری اخراجات میں کمی لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس اقدام سے حکومتی اخراجات میں کمی آئے گی اور عوامی وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہوگا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ اس فیصلے کی نگرانی کے لیے مؤثر نظام وضع کیا جائے اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے لیے سرکاری گاڑیوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ حکومت کا مقصد غریب پر بوجھ کم کرنا ہے۔ لگژری گاڑیوں کے فیول پر 200 روپے لیوی بڑھائی۔ تیل کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں تو لامحدود سبسڈی دینا ممکن نہیں۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کی مد میں 127 روپے کی سبسڈی دی۔ حکومت ڈیزل پر 200 روپے سے زائد سبسڈی دے رہی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں بین الاقوامی سطح پہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کے اندر جو بے انتہا اضافہ ہوا ہے اس کا بوجھ عوام پہ نہ ڈالا جائے۔ صرف 2 ہفتوں میں وزیر اعظم نے پیٹرول کی مد میں 127 روپے پر لیٹر کی سبسڈی عوام کو دی ہے اور ڈیزل کی مد میں 250 روپے پر لیٹر کی سبسڈی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ یہ تمام کام کرنے کے لیے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ 70 ارب روپے کی سبسڈی کیا 70 ارب روپے کے اخراجات کاٹ کے عوام کو سہولت فراہم کی جائے۔ اس تمام جو خرچہ تھا اس کو برداشت کرنے کے لیے سب سے پہلے 60% وفاقی حکومت کی گاڑیاں جو ہیں انہیں بند کر دیا گیا۔ 50% پیٹرول کا خرچہ جو وفاقی حکومت کا ہے اسے فوری طور پہ کاٹ دیا گیا۔ کروڑوں روپے کی جو موٹر گاڑیاں ہیں جو عام پیٹرول سے نہیں چلتی، جو ہائی آکٹین سے چلتی، یعنی گاڑی بھی ہے وہ کیا شاندار اور پیٹرول بھی اس کا کیا شاندار، اس کے اوپر 200 روپے کی ٹیکس لگایا گیا ہے۔ یہ میں بات واضح کر دوں کہ سرکار نے تمام گاڑیاں اپنی گراؤنڈ کر دی ہیں اور اس طرح کی کچھ گاڑیاں جو ماسوا ان اہم معاملات کے لیے ہیں جن میں سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ان کے علاوہ کسی جگہ پہ یہ گاڑیاں اب استعمال نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی یہ کہتے ہیں کہ عید کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، اب دیکھنا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبے کفایت شعاری پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ سیکیورٹی اور پروٹوکولز کو الگ الگ رکھا جائے۔ برادر ممالک ترکی سعودی عرب کی درخواست پر جنگ بند کی ہوئی تھی۔ بھارت اور اسرائیل افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی جاری ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کو اور پروٹوکول کو الگ الگ رکھا جائے، لہٰذا جو ہے اس چیز کو دیکھا جائے اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کفایت شعاری پہ جو ہے وفاقی حکومت کے عمل جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں اس کو جو ہے تمام صوبوں کو اور وفاقی حکومت کو اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے برادر ممالک جو ہیں جس میں ترکیہ، سعودیہ اور قطر شامل تھا، ان کی ریکویسٹ پہ عید کی چھٹیوں میں جو ہے وہ اپنا آپریشن بند کیا ہوا تھا اور ہم نے جو ہے اس پہ اس لیے بند کیا تھا کنڈیشنلی کہ اگر کچھ ہوا تو ہم اس پہ رسپونڈ کریں گے۔ لہٰذا ہم نے بار بار افغانستان سے کہا کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ ہم نے انٹرنیشنل فورمز بھی بتایا، ہم نے اپنے برادر ملک سعودی عربیہ، قطر، ترکیہ کے کہنے پہ ان کے ساتھ بیٹھے، پھر ثبوت پیش کیے۔ دوحہ جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے لیکن اس پہ ٹس سے مس نہیں ہوا افغانستان، تو ہمیں اس پہ ایکشن لینا پڑا کیونکہ پاکستان کی سلامتی سب سے پہلے ہمیں عزیز ہے، تو ہم نے اس پہ ایکشن لیا۔ ابھی بھی اگر افغانستان اب ایکشن نہیں لے گی تو پاکستان کو جہاں جہاں پر جو ہے ہمیں انفارمیشن ملے گی ہم انفارمیشن بیس
ऑपरेशन करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर और ईरानी अवाम को ईद और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने भी इन जज्बात का पुरतपाक अंदाज में जवाब दिया और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बतौर हमसाया बरादर मुल्क वज़ीर आज़म ने जारी कशीदगी के तनाज़ुर में बहादुर ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर और ईरानी अवाम को ईद और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने भी इन जज्बात का पुरतपाक अंदाज में जवाब दिया और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बतौर हमसाया बरादर मुल्क वज़ीर आज़म ने जारी कशीदगी के तनाज़ुर में बहादुर ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर और ईरानी अवाम को ईद और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने भी इन जज्बात का पुरतपाक अंदाज में जवाब दिया और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बतौर हमसाया बरादर मुल्क वज़ीर आज़म ने जारी कशीदगी के तनाज़ुर में बहादुर ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान और इराक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। तर्जुमान के मुताबिक ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी पर दोनों रहनुमाओं ने गहरी तशवीश का इजहार किया। कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। अमन के लिए मुकालमा और बैनुल-अक़वामी कानून की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और इराक के वज़ीर ख़ारजा ने ईद की मुबारकबाद का तबादला भी किया। पाकिस्तान और इराक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। तर्जुमान के मुताबिक ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी पर दोनों रहनुमाओं ने गहरी तशवीश का इजहार किया। कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। अमन के लिए मुकालमा और बैनुल-अक़वामी कानून की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और इराक के वज़ीर ख़ारजा ने ईद की मुबारकबाद का तबादला भी किया। पाकिस्तान और इराक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। तर्जुमान के मुताबिक ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी पर दोनों रहनुमाओं ने गहरी तशवीश का इजहार किया। कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। अमन के लिए मुकालमा और बैनुल-अक़वामी कानून की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और इराक के वज़ीर ख़ारजा ने ईद की मुबारकबाद का तबादला भी किया। सदर ट्रंप के बयान के बाद आलमी तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी हुई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 13% से ज़ायद कमी के बाद $96 फी बैरल तक गिर गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में $17 तक कमी। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव। अमरीकी WTI 13.5% गिर कर $85.28 फी बैरल हो गया। सदर ट्रंप के बयान के बाद आलमी तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी हुई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 13% से ज़ायद कमी के बाद $96 फी बैरल तक गिर गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में $17 तक कमी। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव। अमरीकी WTI 13.5% गिर कर $85.28 फी बैरल हो गया। सदर ट्रंप के बयान के बाद आलमी तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी हुई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 13% से ज़ायद कमी के बाद $96 फी बैरल तक गिर गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में $17 तक कमी। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव। अमरीकी WTI 13.5% गिर कर $85.28 फी बैरल हो गया। पंजाब में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। पंजाब हुकूमत ने पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया। हुकूमत पंजाब के मुताबिक मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों के लिए 10 बजे बंदिश के अहकाम दोबारा लागू कर दिए गए। रमजान मुबारक में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाज़त ख़त्म कर दी गई है। पंजाब में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। पंजाब हुकूमत ने पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया। हुकूमत पंजाब के मुताबिक मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों के लिए 10 बजे बंदिश के अहकाम दोबारा लागू कर दिए गए। रमजान मुबारक में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाज़त ख़त्म कर दी गई है। पंजाब में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। पंजाब हुकूमत ने पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया। हुकूमत पंजाब के मुताबिक मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों के लिए 10 बजे बंदिश के अहकाम दोबारा लागू कर दिए गए। रमजान मुबारक में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाज़त ख़त्म कर दी गई है।
अमरीकी सदर ने ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर करने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी इंतजामिया ने गुज़िश्ता दिनों के दौरान ईरान के साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मुकम्मल खात्मे के लिए बहुत अच्छी और तामीरी बातचीत की। मुज़ाकरात पूरे हफ्ते जारी रहेंगे। मैंने हिदायत दी है कि ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी किस्म के फौजी हमले 5 दिन के लिए मौखर कर दिए जाएं। आपको बताएं कि अमेरिका ने 5 दिन के लिए हमले मौखर कर दिए हैं। महकमा जंग को भी ईरान के बिजली घरों पर हमलों से रोका गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों में अच्छी और मस्बत बातचीत हुई है। बातचीत का मकसद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। अमरीकी सदर की जानिब से यह कहा गया। अमरीकी सदर का ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर करने का हुक्म। महकमा जंग को अभी ईरान के बिजली घरों पर हमलों से रोक दिया गया है। अमरीकी सदर की जानिब से मज़ीद कहा गया, अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों में अच्छी और मस्बत पेशरफ्त हुई है। बातचीत का मकसद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। अमरीकी सदर का ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर करने का फैसला। अमरीकी सदर का ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिन के लिए हमले ना करने का फैसला। अमरीकी सदर ने ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर करने का हुक्म दे दिया है। तो अमरीकी सदर ने आबना हरमुज़ खोलने की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी इंतजामिया ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान ईरान के साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मुकम्मल खात्मे के लिए बहुत अच्छी और तामीरी बातचीत की। मुज़ाकरात पूरे हफ्ते जारी रहेंगे। इससे पहले ट्रंप ने आबना हरमुज़ ना खोलने पर पावर प्लांट्स तबाह करने की धमकी दी थी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि बिजली निज़ाम को निशाना बनाया तो इजरायली बिजली घर समेत अमरीकी अड्डों को बिजली फ्राहम करने वाले पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ईरानी साहिल पर जज़ायर पर हमला हुआ तो खलीज फारस में तमाम मवासलाती रास्तों को बारूदी सुरंगों से भर दिया जाएगा। तो अमरीकी सदर ने आबना हरमुज़ खोलने की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी इंतजामिया ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान ईरान के साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मुकम्मल खात्मे के लिए बहुत अच्छी और तामीरी बातचीत की। मुज़ाकरात पूरे हफ्ते जारी रहेंगे। इससे पहले ट्रंप ने आबना हरमुज़ ना खोलने पर पावर प्लांट्स तबाह करने की धमकी दी थी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि बिजली निज़ाम को निशाना बनाया तो इजरायली बिजली घर समेत अमरीकी अड्डों को बिजली फ्राहम करने वाले पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ईरानी साहिल पर जज़ायर पर हमला हुआ तो खलीज फारस में तमाम मवासलाती रास्तों को बारूदी सुरंगों से भर दिया जाएगा।